हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 11 सोशल साइंस का, यानी सोशल साइंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी। यानी देखा जाए तो जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ रहे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो यूपीएससी की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों पे जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चर्चा करने से पहले जो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, need of conservation of biodiversity. There is important here, the need of conservation of biodiversity here. In section 11.1 we have described the biodiversity as a total number of genes, species and ecosystem of regions. We have also learned that a biodiversity is a fundamental to be our existence on the earth. We look for the food, water, shelter and fiber in the nature. All these are the interrelated and interdependent. That is important. All these are interrelated and interdependent here. If any one component is disrupted, it would be have a multi impact on other component of biodiversity. If we want to be conserved of our natural vegetation and wildlife, we need to relook at the way we exploit these. It's a time to be a relook at our lifestyle and wearing it in the harmony with the nature. Vegetation is an integral part of our life. Let us see how plant life and vegetation impact us. There is the most important here. The next year, vegetation is a key component of biodiversity. The first point is important. Vegetation is a key component of biodiversity. Without a vegetation, the animal and some macroorganism would be die for a lack of habitat. There is a food, oxygen. This is important. Without vegetation, the animal and some macroorganism would be die for a lack of habitats as a food and oxygen. Plant as a root systems hold their soil together, and protection if for a begin blown away by the winds or washed away by water. The next year, vegetation play a major role in the water cycle. The plants provide a link between the ground and the atmosphere by the drawings is water up from the ground and releasing it through the leaves into their air as a water vapor. The next year, the vegetation is a natural barrier and slow down the flow of water over the surface of the ground. Third, there's a photosynthesis. Vegetation remove a carbon dioxide from the air and replace it with the oxygen. The other pollutants can be also be filtered out of the air by their vegetation. The next year, vegetation acts as a stabilizing influence in the greenhouse effect. And conversely, is a clearing of vegetation release high amount of carbon dioxide, the main greenhouse gas. The important. And the next year, the wildlife play an important role in the maintenance of balanced food. The wildlife play an important role in maintaining to balanced food, and this role helps in
maintaining a ecological balance, resulting in a healthy biodiversity. That's important. The individual microorganisms play an important role of scavengers and improving the soil fertility and are a immense of medicinal value. That is important. You can now feel that a conservation of biodiversity is of great significance not only the world or national heritage but also for the survival of the local people in any part of the globes. We as a responsible citizen of the world need to be understand our positive role in the making a responsible living choose. And this would be our contribution in the conserving biodiversity here. The next point here, people participate in the conserving of biodiversity, a case study. The case study is the most important for the exam view here. 25-year-old Rajendra Singh left his job and committed himself to be a rural development. With four companions is boarded as a bus and traveled to be a desolate village near Alawar. By this time, Alawar has been to open to the miner and loggers who is decimated into a forest and damaged is a watershed. His stream and river dry off then to the farm. And dangerous flood now to the accompanying their monsoon rain. And overheld by this calamities here. The village is abandoned, there is a hazard is a water bodies. As man shifted to the cities for a war, and human spirited is a fierce crop from the dry grounds and walked to several kilometers a day to find water. This was all war as when the Rajendra Singh first arrived in 1985. Before that, his work with the nomadic tribes and tried to be understand issue of natural resource and manage this rural area. That is important. Upon the advice of a local village elder, they began organizing to villagers to be learn how to repair and deepen all jihad. His initiated as awareness is a campaigns of Gram Swalamban and which organized every year during to the summer month for the 40 days in a different hundred of villages. In this campaigns discussions on Gram Swalamban, soil conservation, improvement to seed and collection of the herbs, medicines, and Saradam, where is the activities are undertaken. Sign are under coordinated all this activity to mess with their villager as a traditional cycle of rituals. This is important. He played a catalyzing role in there as a build of the 8,600 Zoha, the water harvesting structure. In a 1,058 villages spread over to the 6,500 square kilometer. Out of these, 3,500 were built by TVS. TVS and as of after effect of this, the community was motivated to be build the remaining 5,100 structures. Through his determinations of vision, hard work, and dedications, he has transformed the life of people in a 1,058 villages of Aravali Hill. He has turned the Arav land into the cultivables. Densely is afforested a large tract of making a wildlife sanctuary by the water management and made dry rivers flow throughout their years. Aquatic life and birds sanctuary have flourished. Animal life has become a lively with their desert, remaining with there is a life all around. That's important. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता। आखिर जीव जंतुओं की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? अगर इसकी संरक्षण की आवश्यकता है तो लोग इतना अंधे क्यों हो गए हैं? ये बहुत से प्रश्न उठते हैं। कहते हैं बड़े बड़े किताबों में यही बात लिखी गई है कि जैव विविधता का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैव नहीं रहेंगे तो मनुष्य नहीं रहेंगे, क्योंकि यही एक दूसरे पर ये आश्रित हैं। फिर भी इंसान न जाने क्यों आँख से अंधा, कान से बहरा और सोच से जो है गया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों?
जब हमने बड़े बड़े क्लासों में स्टडी किया है, छोटे क्लासों में इवन स्टडी किया है, कहते हैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं इसमें सभी में इन्हीं बातों पे हमें शिक्षा दी जाती है कि जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी इंसान क्यों लालच के आड़ में अपने जो है जीव जंतुओं को इस प्रकार नष्ट कर रहे हैं कि लगता है कुछ ही समय उपरांत जो है इनकी विनाश सुनिश्चित कर देंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहते हैं जीन प्रजातियों और क्षेत्रीय परिस्थिति तंत्र कुल संख्या के रूप में जैव विविधता का वर्णन हमने किया है। पूरे सिलेबस में हमने यह भी सीखा है कि जैव विविधता पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए आधार है। कहते हैं जैव विविधता पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए, मनुष्य के अस्तित्व के लिए एक आधारशिला है। अगर ये जैव नहीं रहेंगे, जैव नहीं होगा तो इंसानों के अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम भोजन, पानी, आश्रय और तंतुओं के लिए प्राकृतिक पर आश्रित हैं और यह सभी अंतर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि कोई भी एक घटक बाधित हो तो जैव विविधता का अन्य घटकों का एकाधिकार प्रभाव होगा। जैसे मान लीजिए एक जीव को खाने वाला जीव अगर मर जाता है, जैसे टिड्डा ही है, अगर टिड्डा को खाने वाला जीव मर जाता है तो टिड्डे की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि शायद इंसान को भी वो खा जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे पेड़ पौधा ही आप लोग नष्ट कर रहे हो, और पेड़ पौधा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इवन फल फ्रूट भी हमें देता है। तो सोचिए क्या अवस्था पैदा हो सकता है अगर हम इन चीज़ों का जो है दोहन विवेकतापूर्ण न करें। यदि हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण चाहते हैं तो हमें उसी संदर्भ में देखना होगा जैसे हम उनका दोहन करते हैं। समय आ गया है कि हम अपने जीवन शैली को देखें। अगर हम आज नहीं सुधरेंगे, अगर आज जीवन शैली को नहीं देखेंगे तो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें, नहीं तो हम इसके विनाश के कगार पर स्वयं ही खड़ा हो जाएंगे। और यह प्रकृति के साथ सद्भाव लाने का समय है। वनस्पति हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हम सब देखें कि पौधे और वनस्पति में कैसे प्रभावित करते हैं। कहते हैं ये जीव जंतु इंसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन पे ध्यान अगर हम आज नहीं दिए तो आने वाला वक्त में भी शायद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए इसी के अंतर्गत देखें कि हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे जैव विविधता संरक्षण के लिए अनिवार्य कदम हो सकता है। पहला पॉइंट कहता है वनस्पति जैव विविधता के एक प्रमुख घटक है। वनस्पति के बिना जानवरों और कुछ सूक्ष्म जीव के लिए बास, भोजन, ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। देखिए कितना बड़ा इफेक्ट दर्शाया गया है कि वनस्पति के बिना जानवरों, कुछ सूक्ष्म जीव के लिए वास, भोजन, ऑक्सीजन की कमी से सब जीव जंतु जो है मर जाएंगे। इसलिए वनस्पति जैव का विविधता होना बहुत ज़रूरी है। पौधों की जड़ें मिट्टी तंत्र को एक साथ बांधे रखती है। पौधे जो होती है मिट्टियों को बांधे हुए रखती है और हवा में उड़ रही धूल एवं पानी तो टकराव से भी बचाती है। मान लीजिए हवा उड़ रहा है तो पेड़ पौधे जो है आगे अधिक दूर तक उड़ने नहीं देती है। ठीक है। वनस्पति जल चक्र में प्रमुख भूमिका निभाती है। पौधे जमीन में पानी खींचकर हवा में जलवाष्प के रूप में पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देती हैं। अंततः वनस्पति जमीन और वातावरण के बीच एक कड़ी प्रदान करते हैं। अब कितना महत्वपूर्ण है इन पॉइंटों से ही आपको समझ में आ सकता है। वनस्पति एक प्राकृतिक बाधा है और धरातल सतह पर पानी के प्रभाव को कम कर देती है कि धरातल पर जो पानी की बहाव तेज होती है उसको जो है पेड़ पौधे कम कर देते हैं। उसके पश्चात प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वनस्पति हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करता है और यह ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको दूर करता है और ये ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। हवा में विद्यमान अन्य प्रदूषक भी वनस्पति द्वारा सोख लिया जाता है। यानी हवा में विद्यमान अन्य प्रदूषक भी वनस्पति द्वारा सोख लिया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वनस्पति एक स्थिर एवं संतुलन के रूप में कार्य करता है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में वनस्पति एक स्थिर व संतुलन के रूप में कार्य करता है और उसके विपरीत वनस्पति के साफ करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक निकलती है और यही ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण बनती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात वन्य जीवन संतुलन भोजन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह भूमिका पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता भी संतुलित रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अदृश्य सूक्ष्म जीव सफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता में सुधार और विशाल औषधीय महत्व को भी बढ़ा देता है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण न केवल दुनिया अथवा राष्ट्रीय विरासत के लिए बल्कि संसार के किसी भी भाग के लिए, स्थानीय लोग अस्तित्व के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमें संसार के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सकारात्मक भूमिका को समझने की ज़रूरत है और यह जैव विविधता के संरक्षण में हमारा योगदान भी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें स्वयं देखना चाहिए कि किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को हम अधिक से अधिक ना काटें और जितना पेड़ पौधे काटें उससे 2 गुना पेड़ पौधे हम लगा दें, क्योंकि इससे जो है प्राकृतिक में जो है संतुलन बने रह सकते हैं। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता कि सरकार को निर्भर रहिए, आप अपना स्वयं ही कार्य कीजिए। कहते हैं प्रेम आप करते हो प्राकृतिक से, सरकार नहीं करती है। सरकार तो आती से रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, लेकिन पालन तो आपको करना पड़ता है। अगर आप एक अच्छे नागरिक बन जाते हो तो मुझे इतना विश्वास है कि 100% हमारा पर्यावरण का जो है संरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए एक केस स्टडी हम देखते हैं और इसके अंदर आप समझ सकते हो कि इस व्यक्ति ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जीव संरक्षण के लिए। तो वो आप भी बन सकते हो, लेकिन आप इन चीज़ों से दूर भाग रहे हो। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जैव विविधता संरक्षण में लोगों की भागीदारी एक अध्ययन के रूप में हमारे समक्ष आया है। कहते हैं 25 वर्षीय राजेंद्र सिंह अपनी नौकरी छोड़कर स्वयं व ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबंधित थे, यानी उन्होंने जो है अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दिया और गांव में ही विकास के लिए प्रतिबंधित हो गए। 4 साथियों के साथ वो एक बस में चढ़े और अलवर के निकट एक उजाड़ गाँव के लिए चल पड़े। इस बार अलवर ने खनिक और संग्रह करने वाले के लिए काम करने की अनुमति दे दी गई थी। वे लोग अपने जंगलों का नाश कर दिया था, यानी वो लोग अपने ही जंगलों को नाश कर दिया था। इस नदी और नाले सूख गए थे। उनके खेतों में खतरनाक बाढ़ मानसून की वर्षा के साथ आने लग गई थी और इन आपदाओं को से अत्यधिक ग्रामीण अपने जोहारों को छोड़ दिया और उन्हें शहरों में काम के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। यानी सारे के सारे व्यक्ति जो थे शहर को छोड़कर, गाँव को छोड़कर शहरों में प्रस्तापित कर गए। महिलाओं ने शुष्क भूमि पर जो है हल्की फुल्की फसलें उगाई और कई किलोमीटर दूर पर दिन में पानी खोजने के लिए जाती थी। अब यह अलवर था जब राजेंद्र सिंह अब पहली बार 1985 में पहुंचे। सबसे पहले वे खनावदोश जनजातियों के साथ काम भी किया और ग्रामीण मुद्दों में जो है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के मुद्दों को समझने की कोशिश भी किया। यानी राजेंद्र ने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थानीय गांव के बाड़ों की सलाह पर उन्होंने ग्रामीणों को संगठित किया, उन्हें पुराने जोहरों की मरम्मत और उनकी गहराई बढ़ाने के तरीकों की जानकारी भी दी। वे ग्राम स्वावलंबन के लिए एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यह हर वर्ष गर्मियों के महीनों में 40 दिन तक सैकड़ों गाँवों में आयोजित किया जाता था और इस अभियान में स्वावलंबी ग्राम मृदा संरक्षण और उन्नत बीज हर्बल दवा का संग्रह और श्रमदान मुख्य गतिविधियाँ थी। कहते सिंह ने इस सभी गतिविधियों को समित ग्रामीण पारंपरिक अनुष्ठानों के चक्र के साथ शुरू किया। देखा जाए तो 1058 गांव में फैले 6500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 8600 जोहरे जल संरक्षण संरचनाओं की निर्माण में जो है प्रेरित भूमिका निभाई। इसमें से 3500 जोहरे जो है TBS द्वारा बनाया गया था और इस समुदाय द्वारा बनाया गया जोहरों की सफलता को देखते हुए शेष 5100 संरचनाओं का निर्माण करने के लिए आम जनता को प्रेरित किया। अब देखिए यहाँ पर जो है राजेंद्र सिंह जी ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, सरकारी नौकरी को छोड़ के और प्राकृतिक प्रेम को यहाँ पर दर्शाया और इन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सरकार नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग नहीं कर पाते हैं। कहते हैं जिसकी जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर मिल जाता है और प्राकृतिक किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें रहने वाले हर एक जीव जंतु वायरस बैक्टीरिया सभी की है, तो सबका जो है महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। आप ये सोचिएगा कि सरकार का ये काम है तो शायद ये आप गलतफहमी में जी रहे हो। सरकार ना तो कुछ जानती है, सरकार तो सिर्फ अपना कार्य करना जानती है। कहते हैं रूल रेगुलेशन बनाना जानती है, आप पे राज करना जानती है, प्राकृतिक संरक्षण की कोई कदम नहीं उठाई जाती। कहते हैं अगर सरकार कोई रिएक्शन भी लेते हैं, किसी व्यक्ति को जो है गलत कार्य के लिए पकड़ा भी जाता है तो अगले ही समय उसको छोड़ भी दिया जाता है। तो सरकार का यहाँ कदम जो होगा इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी जितना आपका रह सकता है। अगर यही बात सिंह जी सोचते तो शायद
आज इतनी बड़ी जो है प्रोग्राम यहाँ पर शुरू नहीं हो पाता और लोग जो है स्वावलंबी नहीं हो पाते। कहते हैं अपने दृढ़ संकल्प, दूरदृष्टि और कई कड़ी मेहनत समर्पण के माध्यम से वह अरावली पहाड़ियों के 1058 गाँवों में लोगों के जीवन को बदल के रख दिया। अब वह शुष्क भूमि को जो है कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। घने वृक्षारोपण के द्वारा बड़े भाग को जल प्रबंधन द्वारा एक वन्य जीवन आवरण में बदल दिया गया और सूखी नदियों में साल भर जल का प्रवाह शुरू हो गया। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण योगदान थी। जलीय जीवन और पक्षी अभयारण्य विकसित हुए, पशु जीवन जीवांत बन गया और रेगिस्तान में पशु जीवन सभी और मुस्कुराते चेहरे के साथ निलंबित बन गए। तो कहते हैं एक व्यक्ति की जो परिश्रम से इतना कुछ हो सकता है, तो समझिए हमारे भारत का जो है जनसंख्या कितनी है। अगर इसमें से कुछ ही व्यक्ति अगर पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, तो मुझे नहीं लगता कि प्राकृतिक में किसी तरह की आपदाएं आने वाला समय में आ सकता है। तो कहते हैं दोस्तों, अपना आप कर्तव्य करना मत भूलिए। आप सोचेगा कि हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, हम क्या कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपने आस पड़ोस में एक पौधा तो लगा सकते हो, एक पेड़ तो लगा सकते हो। अरे नहीं कुछ दूसरा पेड़ लगाना है, खाने पीने वाला ही पेड़ लगा दो, जैसे कि आम का लगा दो, कटहल लगा दो, अमरूद लगा दो। कम से कम इससे भी पर्यावरण को संतुष्टि तो होगा। पर्यावरण के लिए आपने कुछ ना कुछ किया है। सरकार की तरफ नज़र मत देखिए, सरकार कुछ नहीं करने वाला है। करना आपको पड़ेगा, करना हमें पड़ेगा, करना नागरिकों को पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं पर्यावरण संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये कई एग्ज़ामों में आता है। चाहे आप जिस क्लास में भी पढ़ते हो, जो भी कंपटीशन देते हो, पर्यावरण के अंतर्गत कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तभी तो मैंने कई बार ये बात बोला है कि बड़े बड़े अफसर भी बन जाते हैं, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण के ऊपर कोई कदम नहीं उठाते, जबकि इन्हीं शब्दों को पढ़ के वो जो है बड़े बड़े अफसर बनते हैं। तो ये मुझे बड़ी खेद है कि लोगों की समझ सोच जो है बदल जाती है बड़े पोस्ट पे प्राप्त करने के बाद। चलिए वो तो उनकी प्रॉब्लम है, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आपसे एक ज़रूर बात कह सकता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप तिरपान नर्सरी सेंटर का हेल्प कर सकते हो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और शेयर के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जो व्यक्ति आपके संपर्क में होंगे वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और एनालाइज करेंगे। ये सोचना नहीं दोस्तों, शेयर कीजिए, शेयर करना जरूरी होता है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी होता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह से बहुत से वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहेगा। इवन कि जिस क्लास में भी पढ़ते हो उस क्लास के अंतर्गत कोई ना कोई वीडियो आपको समय में मिलता रहेगा। एग्जाम के टाइम भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि तिरपान नर्सरी सेंटर जो है 8 से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। तो इसको सेव कर लेने में ही भलाई है। आप सोचिए नहीं, विचार इतना नहीं कीजिए। जो आपको रेड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपान नर्सरी सेंटर से जुड़ जाइए।